आंसर लिखते लिखते आपका आंसर डेवलप हो रहा है, बिकॉज 8 मिनट होते हैं एक आंसर को लिखने के लिए। आपने क्वेश्चन पढ़ा, विद इन 30 सेकंड्स वी स्टार्ट राइटिंग द आंसर, सो वी डोंट हैव द टाइम कि वी आर थिंकिंग फॉर 3 मिनट्स, राइटिंग फॉर 5 मिनट्स। नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो वी आर राइटिंग एंड साइमल्टेनियसली थिंकिंग। लेट अस डायरेक्टली जंप एट द डिमांड, क्योंकि वही हमें मार्क्स फेच करेगी। उतना ही हमारे पास टाइम है, उतनी हमारे पास एनर्जी है। ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, फ्रांस की एक स्टडी है टीबी बोटमोर की, कि ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे ही ब्यूरोक्रेट्स क्यों ज्यादा बनते हैं। ओपन सिस्टम तो अक्सर वो सिस्टम होता है जिसमें हम सोचते हैं मोबिलिटी फिजिबल है, अचीवमेंट बेस है, मेरिट बेस है, लेकिन उसमें भी हम देख सकते हैं क्लास प्रिविलेजेस, कास्ट प्रिविलेजेस, जेंडर प्रिविलेजेस का रोल होता है। ज्यादातर बच्चे जो एडमिशन लेते हैं स्टैनफोर्ड और कैम्ब्रिज में, हार्वर्ड में, वो सब के सब अपर मिडिल क्लास से आ रहे होते हैं। इसका मतलब क्लास का अपना एक रोल था, मेरिट के नाम पे वो छुप गया। यानी देखने में ओपन लगता है बट है नहीं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एक बार है तो देन यू कैन गो फॉर टॉपर्स नोट एंड नितिन संगवान की बुक, बेसिकली टू फिल गैप, मेक योर ओन नोट्स, हैव अ कलेक्शन ऑफ कीवर्ड्स, लर्न हाउ टू राइट इन शॉर्ट एंड अदर थिंग्स। So guys, we have with us Shagun, who has secured All India rank 100 this year, very prestigious rank. So Shagun, please come. Thank you so much, sir, for your kind words. So yes, my name is Shagun. I have secured in All India Rank 100 in this year's exam. So, as sir has guided me during my times, and he has given me the responsibility to share with you some of the insights of answer writing that I tried to apply during my exam or the test series which we have done. And sir specifically asked me to try to elaborate upon that concept by choosing two questions from the real exam scenarios, which are they which were asked in the past, so that we can discuss upon them and think that what exactly answer writing in sociology is. Because as far as subject like sociology is concerned, it is as much as important about answer writing and as it is important to have knowledge of the subject, because answer writing plays a very important role in success of any candidate who has sociology as their optional. So when we were with sir, so we were taught about two three basic things about answer writing. So for the first thing was the length. So UPSC has specified the length of the answer that they require. For a 10 marker, they require the answer to be of 150 words or 2 pages. For a 20 marker, now this is one of the unique thing about sociology. So sociology is among the only, I think one of the only optionals which has 3 pages for 20 markers and other optionals has 4 pages. Right. So it is very specific that the examiner wants us to write short answers, but to the point, detailed answers. Now, coming to the second point, which is very much related to this thing, is the answer which we are writing should be as per the demand of the question. Now, we have to inculcate a habit of understanding what the actual demand of the question is and keeping our answer short in line with that demand. And third idea that you all must have heard by sir discuss in his classes is the visibility. So when you are writing an answer, so we are told that we have to use sociological ideas, sociological keywords, but at the same time we have to take care of the fact that those ideas and keywords are very easily visible to the examiner. So if these things are very easily visible, he will give you easily and very good marks. So now let's start with discussing questions. So the first question, it is a question of paper 1 2024 and a question 2C. So it basically has two demands. So what Shagun will be doing here is, guys, that he'll be writing questions from UPSC's previous year. He will take two questions just to guide you in terms of what is answer and what is notes. And I guess he has taken two questions from this year itself. And by these questions, I'm sure you will understand the difference between notes and demand, which I emphasize a lot.
So here comes the question. So the question is, what is social mobility? And critically examine the classifications of open and closed models of social stratification or SS. So this is the question that we are going to discuss today. So as we know, the first part of the question will always go with the definition of what is social mobility. So we will start with the definition. We will keep it as simple as possible. There are thinkers who have given the definition of social mobility. One of them is Petri Mishrokin, and others that it is the movement of values, people in the hierarchy, etc., etc. So you must have known it. Now let us focus the main part of the question, because I don't think so when it is a 10 marker, maybe writing the right definition will fetch us 2 to 3 marks. But the main part of the question is critically examine the classifications of open and closed models of social mobility. And one more thing, Shagun, we can directly start with definition, right? There's no issue with this. Yes. So there are many approaches to begin your answer with, but one of my favorite approach, which I emphasize a lot, is directly define. सीधे जैसे कहते हैं मुद्दे की बात कर दो, ठीक है? क्योंकि when you think of nice introduction or good introduction, and introduction that can impress the examiner to the extent that he will come to your home and tell you that you are an IAS officer, I think you should not be wasting your time on writing a nice, beautiful, flowery introduction. Directly define the keyword. Yes, Shagun. Yes, and yeah, one more thing. So this is a 10 marker basically. So we have to take care of the fact that we only have 2 pages and maybe 150 words to write this answer. So again, it is very important to directly start with the definition. Otherwise, we will wasting a lot of space, a lot of energy, and we wouldn't have start writing the main demand. So now the second part, critically examine the classification of open and closed models of stratification. So if we go by the thing that what is the demand of the question. So firstly, the question is not demanding that what is open and closed system. The question is not demanding to compare the open and closed system. Now I am emphasizing on this fact because there are multiple PYQs which ask us to compare the open and closed system. And हम भावनाओं में बह के यहाँ पे भी comparison कर सकते हैं. Now, so I have taken 5 attempts to clear this exam. So अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट वाले शगुन की बात करूं तो यहाँ पे क्लोज और ओपन सिस्टम में कंपेयर करके आया था, ठीक है, बिकॉज दोज वर द PYQs, दोज वर द डिमांड. सो यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है. दिस इज ही द एग्जामिनर इज आस्किंग क्रिटिकली एग्जामिन द क्लासिफिकेशंस ऑफ ओपन एंड क्लोज सिस्टम. वो बोल रहा है कि आप क्रिटिसाइज करो दैट व्हाट इज ओपन सिस्टम, व्हाट इज क्लोज सिस्टम, एंड इनमें कमियां क्या हैं. दे आर नॉट आस्किंग टू डिफाइन, दे आर नॉट आस्किंग टू कंपेयर. तो लेट अस डायरेक्टली जंप एट द डिमांड, क्योंकि वो ही हमें मार्क्स फेच करेगी. उतना ही हमारे पास टाइम है, उतनी हमारे पास एनर्जी है. सो आफ्टर डिफाइनिंग सोशल मोबिलिटी एंड आंसरिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट आई डिड इज I made a box. I read critical examination of open and closed system. Then I did made a table. एक साइड मैंने लिखा ओपन सिस्टम, एक साइड मैंने लिखा क्लोज सिस्टम. बट दिस इज नॉट टू कंपेयर देम but to answer the demand of the question, which is critical examination. So we can start with a short definition of what is open system and what is closed system. A very short definition कि examiner को ये पता चल जाए कि हमें पता है कि open और closed system क्या होता है. And then directly jumping critical examination of open and closed system. So what is basically critical examination of open and closed system? तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, सर ने ही पढ़ाया होगा कि कोई भी सिस्टम कभी भी एंटायरली ओपन नहीं हो सकता या कोई भी सिस्टम कभी भी एंटायरली क्लोज नहीं हो सकता. तो क्लोज सिस्टम्स के एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो सकते हैं. संस्कृताइजेशन हो सकता है, डोमिनेंट कास्ट स्ट्रक्चर, वर्टिकल मोबिलिटी इन कास्ट, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी इन कास्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड चीजें. हम यहाँ पर बहुत सारी चीजों की बात कर सकते हैं. देन चैलेंजेस टू ओपन सिस्टम की ब्यूरोक्रेट्स होते हैं. फ्रांस की एक स्टडी है टीबी बोटमोर की कि ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे ही ब्यूरोक्रेट्स क्यों ज्यादा बनते हैं. तो इसका मतलब सो कॉल्ड ओपन सिस्टम की फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस वाज अ ओपन सिस्टम, बट वहां पे भी हम देख रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे ही ब्यूरोक्रेट बन रहे हैं. दिस इज एन एग्जाम्पल. और अमेरिकन सोसाइटी इज कॉल्ड टू बी एन ओपन सोसाइटी, बट वहां पे भी काफी हद तक इलीट थ्योरी लागू होती है.
CW मिल्स की। तो यहाँ पे ये सब CW मिल्स, TB बोटमोर, और यहाँ पे स्टेटस क्लोजर मार्क्स वेबर का एक आइडिया है, स्टेटस क्लोजर होता है। तो दीज आर बेसिकली द क्रिटिक ऑफ द ओपन सिस्टम, एंड दीज आर बेसिकली द एरियाज जहां पर हम थिंकर्स के नाम को ऐड कर सकते हैं। And one very interesting thing that we were discussing just 10 minutes back with sir and with the other aspirants and candidates, that यहाँ पर हमारे पास जगह की कमी है, तो क्यों ना हम ऐसे लिखने की जगह कि TB Baltimore has found in his studies that there is this thing, why don't we write that even in bureaucratic structures or open systems like France, there has been observation that a son or a daughter of civil servant becomes a civil servant, or bracket में TB Baltimore. So basically what I want to say is the focus should be on idea, the concept, instead of focusing only on the thinker. कि हमने थिंकर का हम TB Baltimore का नाम लिख रहे हैं, हम CW मिल्स का नाम लिख रहे हैं, हम मैक्स वेबर का नाम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैक्स वेबर के नाम से, TB Baltimore के नाम से, CW मिल्स के नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कॉन्सेप्ट दिखा पाए कि हमको पता है कि देयर इज क्रिटिकलिटी, देयर आर इश्यूज in the studies of open system, and we know the concept, we know the idea, we just don't know the thinker, but we know the whole of it. Yes. कुछ क्वेश्चंस बहुत स्पेसिफिक होते हैं जहां वो थिंकर्स की आपसे डिमांड करते हैं। जैसे एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से, जहां वो डेवी एंड मूरे के सिस्टम के बारे में पूछते हैं और उसका फिर मेल्विन एंड ट्यूमिन का उसका क्रिटिक पूछते हैं। इट इज वेरी मच स्पेसिफिक कि वहां पे आप थिंकर का लिखें, थिंकर का नाम मेंशन करें, उनकी किताब का नाम मेंशन करें, उनकी बुक का नाम मेंशन करें, फिर उनकी बातें करें। बट यहाँ पे जो उन्होंने बोला है वही बातें करें, बट यहाँ पे आपको आइडियाज दिखाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक तरीके से ये भी हमें समझ में आना चाहिए कि कहाँ पर वो हमारा क्रिटिकल ओपिनियन, आइडियाज और सोशियोलॉजिकल एनालिसिस मांग रहे हैं, और कहाँ पर वो चाह रहे हैं कि हम बस एक थिंकर को ही स्टिक करके उसी के अराउंड आंसर लिखें। तो दिस वाज नॉट वन ऑफ दोस क्वेश्चंस। और क्लोज सिस्टम्स में कास्ट सिस्टम को हम क्लोज मानते हैं, पर वहां पर काफी चीजें जैसे संस्कृताइजेशन, वर्टिकल मोबिलिटी ऑफ कास्ट, एक अलग अलग कास्ट है जिन्होंने मोबिलिटी देखी है। देन एक एक्सीडेंटल मोबिलिटी की भी कुछ देर पहले सर के साथ बात हो रही थी कि एक्सीडेंटल मोबिलिटी भी होती है। वहां पे हम उनको क्लोज सिस्टम्स की क्रिटिक पे वो दे सकते हैं। और इसी के साथ सोशल मोबिलिटी की डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन ऑफ क्लोज सिस्टम एंड वो, एंड देन इनके क्रिटिक, और फिर यहाँ पर हम अपने स्पेस को खत्म कर चुके होंगे और कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे। कंक्लूजन में का यहाँ पर हम थिंकर्स का आइडिया लिख सकते हैं कि नो सिस्टम इज अ कंप्लीटली क्लोज सिस्टम और अ कंप्लीटली ओपन सिस्टम, देयर आर वेरिएशंस दैट एग्जिस्ट इन ईच सिस्टम। और एक छोटी सी लाइन लिख के जो कि बेसिकली इस पूरे आइडिया को कि क्रिटिकली एग्जामिन को कंक्लूड कर देती है कि कोई भी सिस्टम ओपन नहीं होता पूरी तरीके से, या कोई भी सिस्टम पूरी तरीके से क्लोज नहीं होता। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इन दोनों सिस्टम्स का क्रिटिकल एग्जामिनेशन कर दिया। तो दिस इज हाउ द क्वेश्चन एंड्स, एंड व्हाई आई चूज दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये एक बहुत रिपीटेड टॉपिक है, ओपन एंड क्लोज सिस्टम। अगर मैं भी इसमें शायद सर का साथ ना होता, या पहले की अटेम्प्ट होती, या थोड़ी सी नादानी होती, तो इसमें मैं सिंपल एक कंपैरिजन करके आया था ओपन एंड क्लोज सिस्टम का, और फिर ये बैठ के सोच रहा होता कि सोशियोलॉजी में मार्क्स क्यों नहीं आते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर डिस्कसिंग। सो डाउट्स तो हम एंड में ले लेंगे। यस, डाउट्स हम एंड में ले लेंगे। ओके तो गाइस देखो, मेन चीज क्या है कि शगुन ने ये बताया आपको कि आप ये जो सेंटेंस है, क्रिटिकल एग्जामिन क्लासिफिकेशन ऑफ ओपन एंड क्लोज सिस्टम, ये सुनते ही आपके दिमाग में टेबल ना आ जाए ओपन और क्लोज सिस्टम के डिफरेंस का, है ना। उसने बोला है क्रिटिकली एग्जामिन क्लासिफिकेशन ऑफ ओपन एंड क्लोज, यानी पहले ओपन वाले सिस्टम को आप क्रिटिकली एग्जामिन कर लो, उसके बाद क्लोज वाले को करो। अगर आप टेबल भी बना रहे हो तो भी आप क्रिटिकल एग्जामिनेशन को ही ध्यान में रखो कि ओपन सिस्टम तो अक्सर वो सिस्टम होता है जिसमें हम सोचते हैं मोबिलिटी फिजिबल है, अचीवमेंट बेस है, मेरिट बेस है, लेकिन उसमें भी हम देख सकते हैं क्लास प्रिविलेजेस, कास्ट प्रिविलेजेस, जेंडर प्रिविलेजेस का रोल होता है। तो वो देखने में ओपन लग रहा है बट है नहीं। जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी,
सबके लिए ओपन है देखने में, वो खुद बोलते हैं मेरिट के बेसिस पे जिसके मार्क्स आएंगे हम उनको एडमिशन उनकी ले लेंगे। लेकिन होता क्या है, ज्यादातर बच्चे जो एडमिशन लेते हैं स्टैनफोर्ड और कैम्ब्रिज में, हार्वर्ड में, वो सब के सब अपर मिडिल क्लास से आ रहे होते हैं। इसका मतलब क्लास का अपना एक रोल था, मेरिट के नाम पे वो छुप गया, यानी देखने में ओपन लगता है बट है नहीं। उसी तरह की बातों को यहाँ पे समझाया गया है कि आप उन्हीं चीजों को थिंकर के नाम से लिख सकते हो, लेकिन पहले वो आइडिया कन्वे करना है कि ओपन सिस्टम क्यों ओपन नहीं है। वेरी नाइस। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन कौन सा चुना है आपने शोभन? सेकंड क्वेश्चन इस बार के पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 1C है। इज पेट्रियार्की अ की टू अंडरस्टैंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटीज इन Very nice. इंडियन सोसाइटी, एलेबरेट। सो द क्वेश्चन इज, और ये भी बताना कि इस क्वेश्चन को देख के बच्चों के दिमाग में क्या आएगा, या तुम्हारे दिमाग में क्या आता पहले? जी सर, इज पेट्रियार्की a key to understand different form of inequalities in Indian society. So again, it is a 10 marker, 150 words question. Now coming back to कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाला शगुन इसमें क्या करता, यहाँ पे देखते पेट्रियार्की कीवर्ड है, ठीक है। ये शायद हमारे द्वारा पढ़ा गया सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला टॉपिक होता है, वी रीड इट अ लॉट। अब यार मेरे को तो पेट्रियार्की के ना 10 थिंकर्स का नाम पता है, हाँ, सारे थिंकर्स का नाम घुसा देता हूँ इस क्वेश्चन में। स्टार्ट करता हूँ डेफिनेशन से, सिल्विया वाल्मीकि, फिर केट विल्सन और सुलेमित फायटन एंड वीना दास, उमा चक्रवर्ती, सब लिख दो क्योंकि मेरे को 10 थिंकर्स के नाम पता है, ठीक है। या शायद मैं ये देख के कि यार क्या बोल रहा है, इनइक्वालिटी, पेट्रियार्की इनइक्वालिटी, हाँ पेट्रियार्की से तो इनइक्वालिटी होती है, ठीक है, लिख देते हैं 10 थिंकर्स के नाम और डिफरेंट टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज। बट इफ वी गो इनटू द डेप्थ, पेट्रियार्की इज अ की टू अंडरस्टैंड डिफरेंट फॉर्म्स of inequalities in Indian society. Very nice. So we have to keep this question very much specific to forms of inequality. Also, those forms of inequality which are visible in the Indian society. तो यहाँ पे अगर हम वर्ल्ड जैसे हम डिस्कस करें, इस आंसर को कॉन्सेप्चुअली लिखें और उस वक्त हमारा फोकस इंडियन सोसाइटी पे ज्यादा हो तो ज्यादा तो वी आर गोइंग टू फेच मोर मार्क्स इन कंपैरिजन की अगर हम पूरे वर्ल्ड व्यू को लेके इस क्वेश्चन पे चले। सो अगेन आंसर कमिंग टू द पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ पेट्रियार्की। यहाँ पे बेसिकली हम सिल्विया वाल्बी का आइडिया यूज कर सकते हैं कि व्हाट इज पेट्रियार्की, या कोई भी डेफिनेशन जो हम पेट्रियार्की की जो हम याद करके गए हो, हम सबकी एक हर कीवर्ड के एक डेफिनेशन तो याद कर ही लेते हैं। सो अ की टू अंडरस्टैंड, देन अगेन अ हेडिंग, a key to understand different forms of inequality, forms पे फोकस होगा और इंडियन सोसाइटी पे फोकस होगा, ठीक है। तो बेसिकली फॉर्म्स और इंडियन सोसाइटी पे फोकस होगा। अब इसके बाद हम फॉर्म्स और इंडियन सोसाइटी पे फोकस करते हुए अपने आंसर को हर इंसान का थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल हो जाता है, आंसर राइटिंग का थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल को फॉलो करते हुए। जैसे यहाँ पे उस वक्त शायद जब रियल के सिनेरियो था तो डिफरेंट फॉर्म्स, क्योंकि अब आदत हो चुकी थी कीवर्ड्स को देखने की आंसर में, इट वाज माय फिफ्थ अटेम्प्ट, तो फॉर्म्स को मैंने इस तरीके से तोड़ा कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी दैट वी एक्चुअली सी। सो देयर कैन बी स्टेटस बेस्ड इनइक्वालिटीज, there can be class based inequalities, class is a form, status is a form, then there can be political power or simply power based inequalities। यहाँ पर बेसिकली आइडिया तो आपको समझ में आ गया होगा किसका यूज किया मैंने, मैक्स वेबर का आइडिया यूज किया है, बट आई विल नॉट राइट मैक्स वेबर यहाँ पे क्योंकि इस क्वेश्चन से मैक्स वेबर का कोई रिलेशन नहीं है। बेसिकली हम उसके 3 आइडियाज को यहाँ पर यूज कर रहे हैं
बट वी आर एक्चुअली नॉट फोकसिंग ऑन द आइडिया ऑफ मैक्स वेबर. हमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, एग्जाम है 8 मिनट है मेरे पास आंसर लिखने के लिए, मेरे को फॉर्म समझ में आ नहीं रहे हैं, मैंने मैक्स वेबर पढ़ा हुआ है, उसके फॉर्म्स 3 लिख दिए विदाउट एक्चुअली राइटिंग वेरी नाइस. वेबर का आइडिया. शगुन, बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बोला है. कभी कभी क्या होता है ना, स्टेटस क्लास पावर सोचती है ना, दिमाग में आता है मैक्स वेबर, वो ट्रिनिटेरियन मॉडल, वो 3 फॉर्म्स, तो बच्चे के अंदर एक वो होता है कि मैं उसका नाम भी लिख देता हूँ. बट वो रिस्ट्रेंट रखना कि यार कोई दिक्कत नहीं अगर मैक्स वेबर का नाम ना भी लिखे, क्योंकि क्वेश्चन वैसे भी फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी पे मैक्स वेबर के ऊपर नहीं, ये बड़ी बात है. तो आई गेस आप लोग समझ रहे हो कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं. रिस्ट्रेंट रखना बड़ा जरूरी है. ओके, सो यस. सो अगेन एंड जहां पर हम बोलते हैं कि वी हैव टू यूज मैक्सिमम कीवर्ड्स, अब इसी चीज में 3 कीवर्ड्स भी यूज हो गए हैं, क्लास, स्टेटस, क्लास, पावर. सो इसमें बेसिकली क्या कर सकते थे, कोई ऐसा भी होता था कि आप 1 2 3 4 से लेके 6 7 पॉइंट्स यहाँ पर लिख दें. दैट वाज आल्सो अप्रोच. मैंने उस वक्त क्या किया था, क्योंकि रियल एग्जाम में इस साल मैंने इन्हीं को डिफरेंट सब पार्ट्स में तोड़ दिया. जैसे क्लास की बात करी तो एक वो तो होता ही है, पेमेंट डिस्पैरिटी, पे डिस्पैरिटी की बात होती है. देयर इज अ आई थिंक बेटर सोशियोलॉजिकल वर्ड फॉर इट, वेज गैप. वेज गैप. सो याद है, तो वेज गैप की तो बात होती है, ठीक है. तो उसमें अलग अलग स्टडी है, 37% गैप होता है. यहाँ पे भी हम थिंकर की जगह अगर हम डाटा कोट कर दें, पीरियोडिक लेवल 4 सर्वे का डाटा है, वर्ल्ड बैंक का डाटा है, तो वो भी हमारा सोशियोलॉजिकल माइंडसेट दिखाता है कि हम डाटा को भी सोशियोलॉजिकली एनालाइज कर रहे हैं. हमारे सामने वर्ल्ड बैंक का डाटा है, हमने देखा यार ये तो पेट्रियार्की, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, स्टेटस डिफरेंशिएशन से रिलेटेड. अब क्लास की जब बात होती है, अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें, हम पेपर 2 में एक और तरह का इनइक्वालिटी पढ़ते हैं, वो होती है बॉन्डेज लेबर इनइक्वालिटी. आई थिंक सोशियोलॉजिस्ट लाइक शशि कुमार ने काफी आइडिया दिया है कि यस. बॉन्डेज लेबर में फीमेल ज्यादा होती है. यस. when it comes to bondage labor, child female they suffer from the bondage labor. तो ये एक फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी हो गई कि why more females are bondage labor than वो. तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इस पार्ट को कि इंडियन सोसाइटी के बारे में इसने स्पेसिफिकली पूछा था. अब स्टेटस बेस्ड में आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो. आप हाउस होल्ड स्टेटस, पेट्रियार्कल सोसाइटी, जो नेम्स होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं मेल्स के नाम से, ठीक है. हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग पावर, वेरी नाइस. एजुकेशनल पावर की इफ देयर एक्सेस मिलेगा. यस, एजुकेशन में बेटर एक्सेस फॉर मेल्स. एंड यहाँ पे आप एग्जांपल डाल सकते हो. अगर आपको यहाँ पे सही में एग्जांपल लिख देना है, तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ COVID-19 इफ देयर इज अ पुअर फैमिली एंड दे हैव वन डिवाइस टू ऑपरेट, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन थी, तो दैट वन डिवाइस विल मोस्टली गो टू दी बॉय चाइल्ड ऑफ द फैमिली. यहाँ पे आपको पेट्रियार्की देखने को मिलेगी. राइट. फिर पॉलिटिकल पावर में चॉइसेस. अब इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल, क्योंकि क्या इंडियन अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल पास हुआ है 33% रिजर्वेशन का. नाउ व्हाट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल इन लोकसभा एंड राज्यसभा? हार्डली आई थिंक अराउंड 13 14 15%, दैट्स इट. वहां पे पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, सरपंच पति, वेरी यूनिक आइडिया, वेरी यूनिक आइडिया टू इंडिया. सो अ फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी कि हम इनको पॉलिटिकल पावर भी नहीं दे रहे, अगर ये सरपंच बन भी रहे हैं तो इनके पति को जा रहा है. वेरी स्पेसिफिक टू इंडियन सोसाइटी. वेरी नाइस. सो मैंने इन 3 फॉर्म्स में इस आंसर को ब्रेक करने की कोशिश करी थी इन द रियल एग्जाम सिनेरियो. अदरवाइज वी कुड हैव गॉन फॉर 1 2 3 4 5 6 अप्रोच. वो अप्रोच भी सही होती. ये मैंने 3 बड़े आइडिया देके उनको लिख दिया था. एंड या जो सर ने कहा, यहाँ पे मैंने मैक्स वेबर का नाम नहीं लिखा था, 2 मैंने उनके आइडिया को चोरी जरूर किया. एंड कमिंग टू द कंक्लूजन, नाउ ये एक तरह का ऐसा आंसर था कि कंक्लूजन से पहले एक और चीज जी समझते हैं. तो गाइस अब ये देखो, शगुन ने सिर्फ और सिर्फ डिमांड जो पूछा है बस वही लिखा है, और कुछ भी नहीं लिखा है. और अगर और कुछ लिखा भी होगा तो आई एम श्योर इसके बाद ही लिखा होगा, पहले डिमांड पूरी हो जाए. अच्छा, आप एक ये चीज नोटिस करो कि शगुन के आंसर में फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी पे इतना एम्फेसिस है कि स्टेटस, क्लास और पावर को लिखने के बाद अब वो एग्जाम्पल या पॉइंट्स अब अपने आप उसको निकलते जा रहे हैं दिमाग में, क्योंकि उसने ऑलरेडी ब्रॉड हेडिंग डाल दी है. पावर पहले सोचा होगा, बाद में सरपंच पति ख्याल आया होगा.
क्लास पहले सोचा होगा, बाद में ये बॉन्डेज का ख्याल या वेज गैप का आया होगा। लिखते लिखते भी कई बार आइडियाज आपको स्ट्राइक करते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले ही सब कुछ पढ़ा हो, पहले का पढ़ा हुआ ये काम आ रहा है, उसके बाद प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आ रही है इसको लिखने के बाद। तो ये बहुत ही माइन्यूट डिटेल है जो आपको ध्यान रखनी है। कहीं पे भी शगुन का फोकस सिल्विया बॉल्बी, लीला दुबे, उमा चक्रवर्ती इन पे नहीं चल रहा। ही कुड हैव रिटन ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की, Uma Chakravarti. He could have written Leela Dubey, Seed and Earth. He could have written Sylvia Bowlby, Six Pillars of Patriarchy. But इसका फोकस अभी ना मुद्दे पे है, मुद्दे पे। बाद में सिल्विया बॉल्बी का नाम या फिर लीला दुबे का आ जाएगा, लेकिन पहले ये आना चाहिए। Also, just to add to what sir said कि बिल्कुल हमने 3 ब्रॉड पॉइंट सोच लिए, फिर हाउस होल्ड, एजुकेशन, बॉन्डेज, वेज गैप, ये सब आता रहा। हाउ टू डेवलप दिस थिंग? दिस नीड्स कंसिस्टेंट आंसर राइटिंग। कि आंसर लिखते लिखते आपका आंसर डेवलप हो रहा है, बिकॉज 8 मिनट होते हैं एक आंसर को लिखने के लिए। आपने क्वेश्चन पढ़ा, विद इन 30 seconds वी स्टार्ट राइटिंग द आंसर। सो वी डोंट हैव द टाइम कि वी आर thinking for 3 minutes, writing for 5 minutes. No, that is not possible. So we are writing and simultaneously thinking. So how to do these things together? Here the role of answer writing, consistent answer writing under a good mentor becomes very important. Very nice. Now coming to the conclusion part. अब यहाँ हम थोड़े से ना अपने नोट्स को, अपने मन को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि नहीं यार, इतनी पैट्रियार्की नहीं है, इतनी भी फॉर्म्स नहीं होती, सोसाइटी इज मूविंग टुवर्ड्स वुमेन लेड डेवलपमेंट, बेटर प्लेस फॉर वुमेन इन द सोसाइटी। जो भी हमारे नोट्स की अच्छी बातें होती हैं, वो हम यहाँ पर आकर लिख सकते हैं जब हमने डिमांड को, कीवर्ड को पूरी तरीके से एड्रेस कर दिया है। वहां पर शायद एग्जामिनर उस चीज को पढ़ के और खुश भी होगा। अगर हम यहाँ पर ही ये सब चीजें घुसाने लगेंगे तो एग्जामिनर को ये लगेगा यार मैंने पूछा क्या था, ये लिख क्या रहा है। टुवर्ड्स द कंक्लूजन ये हमारा पॉजिटिव माइंडसेट और हमारी नॉलेज बियॉन्ड द क्वेश्चन भी दिखाएगा, बट नॉलेज बियॉन्ड द क्वेश्चन शुड बी शोन मिनिमली आफ्टर एड्रेसिंग द मेन डिमांड ऑफ राइट। So here we can write, know this, we are moving towards women led development. उसमें एग्जांपल देना हो तो हमने 33% जैसे 33% रिजर्वेशन का बिल पास करना वगैरह वगैरह। एंड यहाँ पे कोशिश करना कि इंडिया का ये एग्जांपल हो, अगेन बिकॉज इट इज इंडियन सोसाइटी, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन सोसाइटी। द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन लेबर फोर्स इज इंक्रीजिंग, या फिर डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ वुमेन आर इंक्रीजिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा लेके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम कंक्लूड कर सकते हैं। Very nice. So these were some of my insights into the answer writing of sociology, which I have learned under the guidance of Nishant sir and others, and with my friends, practicing answer writing daily in a period of 6 years, 5 attempts in 6 years. I started my journey back in 2019. So this is something that I have learned, and thank you sir for giving me this opportunity. Shagun, now we will keep it Q&A type. Okay, so I'll ask you a few questions about the preparation. Since you have had long experience in this preparation, many a times you may have felt demotivated, right? Because it's been a long time. How did you manage to regain yourself and then again prepare for the next attempt? Many a times it may have happened. What was the main source that kept you moving forward कि नहीं मुझे करना है? और जब मोटिवेशन लूज होती थी तो क्या करते थे चार्ज अप होने के लिए? Okay, sir, that is a very interesting question. So all of us has basically have different approaches. So मेरे साथ क्या किया था सर, my support system was very nice, which includes my family and my friends. They were all out for me कि आप ये करो और आगे बढ़ो। एंड सेकेंड, जब मैं डिमोटिवेटेड फील करता था, आई यूज्ड टू इमेजिन कि यार शुरू क्यों किया, why I started this, ये करना है, and this is a thing that I want to do. And these are the two things. Last thing which I want to say to the young aspirants, and this is basically from my very much personal experiences. ये जो प्लान बी की बातें होती है ना, yes, and मैं वही फर्स्ट अटेम्प्ट वाला शगुन ना ये सोचता था कि प्लान बी इज फॉर लूजर्स, ठीक है, एंड दैट्स द वर्स्ट थिंग टू से, इट्स नॉट. So there is a very big element of luck in this exam. Prelims हम सभी देखते हैं किस तरीके से हर साल पैटर्न चेंज होता है, ठीक है.
मेंस एक ऐसी स्टेज है जहां आपकी मेहनत डू प्ले अ रोल, बट वहां पे भी कभी कभी ऐसे जैसे पेपर्स में, थिक्स जैसे पेपर्स में लक डू मैटर। कई बार आप नर्वस हो जाते हो, थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो जाती है, होता भी बारिश वाले मौसम में है प्री, तो उस वक्त तबीयत बिगड़ने के चांसेस काफी रहते हैं। कौन सा इंटरव्यू बोर्ड पड़ेगा, कितने इंटरव्यू में मार्क्स आएंगे, सो देयर इज अ एलिमेंट ऑफ लक। तो बेसिकली एज सर हैज सेड कि मैंने भी फिर अपने 3 अटेम्प्ट के बाद, जब मेरे को 3 अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं मिली थी, आई डिड स्टार्टेड डूइंग मास्टर्स इन सोशियोलॉजी, और माय एम वाज टू गो फॉर पीएचडी और फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर सो दैट आई कैन सिक्योर अ लिविंग फॉर माई सेल्फ इफ अल्टीमेटली आई एम नॉट एबल टू गो थ्रू द एग्जाम। तो दीज आर 3 पिलर्स। एक तो ऑलवेज रिमेंबर योर वाई, सेकेंड इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम। आपके सपोर्ट सिस्टम में सिर्फ 4-5 लोग हों, सिर्फ आपकी फैमिली हो, चलेगा, बट दीज पीपल शुड बैक यू। एंड थर्ड इज दिस एग्जाम don't define your intelligence, they don't define anything about you, it's just an exam. So there is a probability of failing, there is a probability of passing. So अगर आपने 2-3 अटेम्प्ट पूरा दम लगा के कर ली हैं, do start thinking about plan B, because अगर आपने पूरा, आप समझ गए हैं इंट्रिसिटीज को, आंसर राइटिंग की, प्रीलिम्स की, तो आप फिर प्लान बी के साथ साथ भी इस चीज को कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। एंड इंटरेस्टिंगली इन माय केस, आई मेरा 4th अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ इनटू द रिजर्व लिस्ट एंड आई गोट इनटू आईआरएमएस। मेरा 5th अटेम्प्ट में AIR 100 आया। ये दोनों अटेम्प्ट मैंने मास्टर्स के साथ दी थी, और जो 3 अटेम्प्ट मैंने घर बैठ के दी थी, तीनों में मेरा सिलेक्शन नहीं। सो दिस इज, ये 3 चीजें मैं बोलना चाहूंगा। सो एक ये भी चीज है शगुन, आजकल क्या है ना, people have not yet given their first attempt. They are still thinking of their plan B, despite not giving their first attempt itself. तो ये प्लान बी इतना वायरल हो गया एज अ फिनोमेना कि अगर ये नहीं सोच रहे हो तो यानी आप अपना रिज्यूमे खराब कर रहे हो, वो रिज्यूमे का एक पार्ट बनते जा रहा है। तो आप ये चीज जरूर बच्चों को बताओ कि क्यों इस वक्त जिन्होंने अभी फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट देना है, उनको प्लान बी इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, और उनके लिए ए और बी दोनों अभी यही होना चाहिए, एटलीस्ट फॉर 2 years आई वुड से। यूपीएससी में अगर आपको तैयारी में ही आपको 1.5 साल तो चले जाता है, तो उसी में अगर आप किसी का सुन के प्लान बी को डिसाइड करके 1 साल आप उसके लिए अलग से दे रहे हो, तो फिर वो साइकिल बहुत लंबा हो जाएगा। यू मे स्टार्ट फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड। तो आपको किसी ने बोला था प्लान बी कि ये रखना चाहिए टीचिंग, या फिर आपका खुद का ख्याल था? ये सर मेरा खुद का ख्याल था, बिकॉज अल्टीमेटली आफ्टर रीडिंग सोशियोलॉजी फॉर सम ऑफ द टाइम, 2 नंबर नहीं आ रहे थे, बट मेरा इंटरेस्ट जरूर जाग रहा था सोशियोलॉजी में कि इट इज इंटरेस्टिंग थिंग। एंड एक ये भी था कि यार मेरे को ये रियलाइजेशन हुआ कि मुझे इस एग्जाम के बारे में पता चल गया। आई हैव माई नोट्स विद मी, मैंने जीएस के नोट्स मेरे तैयार हैं, सोशो के नोट्स तैयार हैं, प्री में 3 बार पास कर चुका हूँ, मेंस का मेरे पास इनफ एक्सपीरियंस आ चुका है कि मेंस में कैसे आंसर लिखने हैं, किस तरीके से मेरे को इम्प्रूव करना है। आई नो हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर, आई हैव माई करंट अफेयर सोर्सेज इंटैक्ट, आई हैव टेकन द टेस्ट सीरीज, आई हैव टेकन द डैम। तो उस तरीके से मैंने अपने आप को पूरी तरीके से इंश्योर कर लिया था कि आई एम इनटू द एग्जाम नाउ, आई अंडरस्टैंड द एग्जाम वेरी वेल, एंड विद दैट अंडरस्टैंडिंग आई कैन गो फॉरवर्ड एंड कैन मैनेज बिटवीन 2 थिंग्स। तो जब तक आपको वो वाला कॉन्फिडेंस ना आए, एज सर हैज सेड, कि आई कैन मैनेज बिटवीन माय प्लान ए एंड प्लान बी, not just manage, very well manage between my plan A and plan B, means I am very confident that I understood the exam, I understood the demand of the exam, how to write, how to read, how to express, then we can always go for plan. डेफिनेटली। शगुन कुछ क्वेश्चन लेते हैं बच्चों के भी। जी। सोर्सेस सर रेफर्ड, अनीश क्या क्या सोर्सेस आपने रेफर किए? So सोर्सेस की अगर हम बात करें तो मैंने शुरुआत में तो सेल्फ स्टडी से ही काम चलाया था। तो द फर्स्ट सोर्स वाज इग्नू के नोट्स। These notes help a lot in gaining conceptual clarity. फिर आपको काफी समझ में आता है कि एक्चुअली में सोशियोलॉजी क्या है, राइट। एंड फिर इन नोट्स को आप टॉपर्स नोट से वो कर सकते हैं। बेसिकली जो हम कभी कभी चीज करते हैं, ये मैंने बहुत एस्पिरेंट्स में देखा है, डायरेक्टली जंप टू नितिन सांगवान, विच इज एन एक्सीलेंट बुक, विच इज एन रियली एक्सीलेंट बुक। पूरी दो सोशियोलॉजी को कोई अगर 400 से 500 पेज में आपको बता दे, इट इज एन एक्सीलेंट आइडिया, अ वेरी वेल रिटन बुक। बट
वो बुक समझ में नहीं आती है जब तक हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आती है. मैंने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इग्नू के बीए एमए नोट से ली थी, विच आर वेरी वेल एक्सप्लेन नोट्स. आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं या अदर सोर्सेज को वो कर सकते हैं टू गो फॉर द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इन सोशियोलॉजी. देन always the Nitin Sangwan, it will be used for basically filling the gaps. क्योंकि बीए ने इग्नू ने अपनी बीए की बुक्स यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से तो लिखी नहीं है, तो Right. कुछ ना कुछ गैप रह ही जाएंगे. Exactly. उन गैप्स को आप नितिन सांगवान और किसी टॉपर्स नोट से प्लग कर लोगे. क्लब कर लो तो आपका पूरा वो बन जाएगा. इसमें मेरे साथ एक और चीज हुई थी कि पेपर 2 का मुझे ऐसा लगता था कि एक गैप है नॉलेज में, एंड दिस वाज बिफोर डूइंग माय मास्टर्स. तब मैंने जब सर के साथ टेस्ट सीरीज ली थी तो सर आप अभी भी डिस्कशन करते हैं टेस्ट के बाद? डिस्कशन करते हैं, तो वो जो टेस्ट के बाद जो डिस्कशन थे और जो मॉडल आंसर्स हुआ करते थे उससे मैंने अपना पेपर 2 का काफी गैप फिल किया. सो वंस यू हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, दिस विल कवर 60-70% ऑफ योर सिलेबस. क्लब विद नितिन सांगवान टॉपर्स नोट में इस वक्त आई थिंक अनिमेश प्रधान सर के नोट्स हैं पिछले साल के, उनकी क्वालिटी काफी अच्छी है. और अगर आप टेस्ट सीरीज ले रहे हो तो लेवल सब के टेस्ट सीरीज, सर के डिस्कशंस या कोई और सोर्स से उन गैप्स को फिल कर लो. इन गैप्स को फिल करने के बाद अपने खुद के नोट्स बना लो, विच कैन बी डिजिटल और एनीथिंग लाइक दैट, एंड वी कैन गो विद दैट. शगुन, एक चीज बड़ी अच्छी लगी मुझे आपकी. आपने कहा कि नितिन सांगवान पे डायरेक्टली जंप नहीं करना चाहिए, बट बच्चे कर रहे हैं. तो जैसे आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का सोर्स था इग्नू, आज की डेट में यही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का सोर्स बनने की कोशिश हो रहा है. तो और इस वजह से बच्चे ना ये सोच रहे हैं कि रेफर तो किताब की जा रही है बट ये समझ क्यों नहीं आ रही मुझे. ठीक है. जी जी. तो उनको सेल्फ डाउट मोड में जा रहे हैं वो कि सबने यही किताब बोली लेकिन समझ क्यों नहीं आया मुझे, या फिर जितना मैंने समझा क्या शायद वही समझ थी, मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, चलो टेस्ट लिखते हैं. सो क्या फॉल्ट है आपको लगता है कि डायरेक्टली इस पे जंप नहीं करना चाहिए? उसको थोड़ा डिटेल में अगर आप बता सकते. यस. सो जैसे सोशियोलॉजी में ना, अब पहली बात तो जो नितिन सांगवान सर ने जो बुक लिखी है ये नितिन सांगवान सर के नोट्स ही तो हैं. तो बेसिकली नितिन सांगवान सर ने कहीं से तो समझा होगा चीजों को, उनके बाद ये नोट्स बनाए, और फिर वो तो सर ने समझा फिर नोट्स बनाए, वो बुक आई. हम ये तो मिस कर रहे हैं कि सर ने भी तो समझा था, हम खुद समझ नहीं रहे हैं, हम सीधा नोट्स पढ़ रहे हैं. तो जैसे अब हम एंड में भी खुद के नोट्स बनाएंगे, पर वो जो खुद के नोट्स होंगे, चाहे वो जीएस के नोट्स हो चाहे वो किसी के नोट्स हो, वो नोट्स हमने कोई सोर्स को समझ के ही तो बनाए हैं. तो वो मेरे ख्याल से वो आते हैं. दूसरा, जब हम ये सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो सरफेस लेवल पे सोशियोलॉजी सीम्स अ वेरी इजी डिसिप्लिन. इट इज, बट इट इज नॉट वेरी इजी डिसिप्लिन. ऐसा नहीं है कि उंगलियों पे होगा. हमें पता होना चाहिए कि फंक्शनलिज्म एक्चुअली में बोलता क्या है. ठीक है, कि रेडक्लिफ ब्राउन ने जब शुरू किया फंक्शनलिज्म के ऊपर बातें करना, वो क्या बोल रहे थे कि कैसे निकलता है, फिर डकहाइम ने उनको कैसे फॉरवर्ड किया, वेबर क्या क्रिटिक करता है, मार्क्सिज्म, पूरा मार्क्सिज्म का आइडिया क्या है, कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच ऑफ सोशियोलॉजी आई कैसे, फेमिनिज्म बोलना क्या चाह रहा है. जब तक हमें इन सब चीजों के ऊपर क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक हमें नितिन सांगवान सर के नोट समझ में नहीं आएंगे. और सर ने भी कहीं ना कहीं इन्हीं सोर्सेज से अपनी क्लैरिटी हासिल करी होगी. तो बेसिकली अब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एक बार है तो देन यू कैन गो फॉर टॉपर्स नोट एंड नितिन सांगवान की बुक, बेसिकली टू फिल गैप, मेक योर ओन नोट्स, हैव अ कलेक्शन ऑफ कीवर्ड्स, learn how to write in short and other things, but do have the conceptual clarity in the start. और देखते हैं क्वेश्चन क्या है बच्चों के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर सीइंग टॉपर कॉपीज ऑब्जर्व दैट एवरीवन इज सब्सटेंशिएटिंग आर्गुमेंट्स within main body in socio. So what should be the substantiation in socio? Some topper use current example and interlink with theory, while some mostly thinkers directly and their study as substantiation. Okay, that's valid question. I think ये काफी डिपेंड करता है कि what exactly the question is. तो अगर जो क्वेश्चन है it specifically focuses on a thinker, तो वहां पे आप उन thinkers की स्टडीज, उन thinkers के, जैसे if there is a question on Sanskritization, we know that the idea of Sanskritization was mainly given by M.N. Srinivas. So ऐसे में it is good to substantiate that particular answer with the ideas of M.N. Srinivas.
और अगर कोई क्वेश्चन है विच इज लाइक जो 2 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस करे विच आर नॉट particularly about a thinker but they were particularly about a concept, about an idea, तो वहां पर आप किसी भी चीज से आप करंट एग्जाम्पल से इंटरलिंक करके, आप नॉर्मल एग्जाम्पल से, नॉट सो करंट एग्जाम्पल से इंटरलिंक करके, आप कोई केस स्टडी से इंटरलिंक करके, कोई सोशियोलॉजिकल स्टडी से इंटरलिंक करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये डिफरेंशिएशन होता है कि क्वेश्चन बेसिकली क्या है, इज इट बेसिकली अ थिंकर बेस्ड क्वेश्चन और इट इज अ करंट क्वेश्चन। और उन दोनों क्वेश्चंस पे अगर वो थिंकर बेस्ड क्वेश्चन है तो यूज थिंकर का सब्सटेंशनाइजेशन, और अगर वो एक नॉर्मल क्वेश्चन है जो हमने आज डिस्कस करे उसमें वी कैन डू एनीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन बाय मधु। I am getting low scores in sociology mains in both 2023 and 2024. How to cut short my answers without using unnecessary explanations or words and write a concise answer. So इसमें बेसिकली क्या है, हमें ज्यादा लोड नहीं लेना है कि हम कम लिख रहे हैं। बेसिकली यूपीएससी तो बोल रहा है कि आप 2 पेज में लिखो, 3 पेज में लिखो, एंड व्हेन वी राइट दोज आंसर्स, या फिर 8 मिनट में लिखो, या एट मैक्स 20 मार्कर के लिए वी हैव 12 मिनट्स, कि 12 मिनट में अपने आंसर को पूरा करो, या 10 मार्कर के आंसर को 8 मिनट में पूरा करो। तो जब हम कम लिखते हैं तो हम अपने दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनाने लगते हैं कि हम कम लिख रहे हैं, मे बी हमें इस वजह से मार्क्स नहीं मिलेंगे कि हमने कम लिखा। एक तो उस फोमो से बाहर आना है। दूसरा, टू कट शॉर्ट योर आंसर्स, आई थिंक मोर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, more answer writing practice under guidance of someone will be very helpful to write short। और आप अपने दोस्तों के साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद के आंसर्स लिख के उनको एनालाइज कर सकते हो कि यार ये सेंटेंस अगर मैं हटा देती या हटा देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक एक्स्ट्रा सेंटेंस मैंने लिख दिया है, ये एक एक्स्ट्रा लाइन मैंने लिख दी है। डेफिनेशन, कई बार होता है कि हम किसी चीज की 2-3 डेफिनेशन याद कर लेते हैं और डेफिनेशन में पहले पेज पर हम 2-3 डेफिनेशन ही लिख देते हैं कि मैं एक डेफिनेशन को स्टिक करूं। ये सब चीजें जैसे जैसे हम आंसर राइटिंग और करते हैं और आदत पड़ती है, ये चीज बेटर समझ में आती है। और एक बार ना ये भी सोचने की चीज है, किसने, मधु ने पूछा था ना कुछ? मधु ने। मधु, आप ना एक एक्सरसाइज करो अपने लेवल पर कि आप जब आंसर लिखो अगली बार, ठीक है, नॉट मेंस की बात नहीं कर रहा हूं, अगली बार जब भी आप आंसर लिखो तो एक बार अपने आंसर को एक आउटसाइडर की नजर से देख। मधु बनकर मत देखना। मधु बनकर देखोगे तुम्हें आंसर तुम्हारा बहुत अच्छा लगेगा। एक नॉन मधु यानी कोई और आउटसाइडर की तरह से देखोगे, तुम्हें बस लगेगा कि आंसर है या नोट्स है, डिमांड मीट हुई या नोट्स रिवाइज हुए। ओके, ये बार बार तुमको सोचना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है, ठीक है, चाहे तुम्हें किसी और की हेल्प भी लेनी पड़े यहाँ, बट तुम्हें तुम्हारा सवाल का वो जवाब मिलना चाहिए कि कमी कहाँ रह रही है। खुद नहीं पता चलेगा तो शायद दूसरा ही बताएगा। So another question by Preet Singh, how many marks you got in sociology in previous attempts? So अभी तक तो मेरे मार्क्स एवरेज पर ही थे, पिछले अटेम्प्ट में आए थे 260, उससे पहले इट वाज 251, 234, बट व्हेन इट कम्स टू द 2024 की अटेम्प्ट, अभी मार्कशीट बाहर आई नहीं है, माय टोटल मार्क्स जंप फ्रॉम 748 in 2023 to 809 in 2024, which is a improvement of 61 marks। और क्योंकि इस अटेम्प्ट में ऑलरेडी देयर वर 412 मार्क्स इन जीएस, तो जीएस में जो इंप्रूवमेंट का स्कोर था वो लिमिटेड था, तो आई थिंक जो ये 61 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ है इन बिटवीन 2023 एंड 2024, इसमें बहुत बड़ा रोल सोशियोलॉजी का है, एसए का भी है, बट आई थिंक सोशियोलॉजी हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इस साल की मार्कशीट आएगी तो आई विल लेट यू नो। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम शिव, सर इग्नू से नोट्स भी बनाए थे या जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग? नोट्स भी बनाए थे बट नॉट इन द फर्स्ट रीडिंग। पहले आप इग्नू पढ़ लो, कभी भी ना, मेरे को ऐसा लगता है कि पहली रीडिंग में ना ही जीएस के ना ही सोशो के नोट्स नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि उस रीडिंग में बस आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आप समझने की कोशिश कर रहे हो और फिर आप सब चीजों को समझ के उन्हें कॉन्साइज करके अपने नोट्स बनाते हो। तो आप एक बार इग्नू पढ़ो,
फिर नितिन सांगवान और एक टॉपर्स नोट्स उन्हें कंबाइन करो, या फिर अपने इग्नू की जगह अपने कोचिंग नोट्स को इन दोनों से कंबाइन करो। और जब ये सारी चीजें कंबाइन हो जाए, उसके बाद जो भी बेस्ट लैंग्वेज लगे, बेस्ट अंडरस्टैंडिंग लगे आपके हिसाब से, उनको कंबाइन करके अपने नोट्स बनाओ। डोंट मेक नोट्स इन फर्स्ट रीडिंग। जो भी आपका सोर्स है उसकी एक रीडिंग अच्छे से करने के बाद ही नोट्स पे आप जाइए। सर, हाउ डू यू मेक नोट्स ऑफ जीएस एंड इन विच रीडिंग? अगेन, जीएस के नोट्स का यही स्ट्रेटेजी थी कि कीप एज शॉर्ट एज पॉसिबल। ये ना किसी टॉपर टॉक में ही मैंने सुना था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट वो था, उनकी थी वन टॉपिक वन पेज स्ट्रेटेजी। सो जीएस में काफी डिफाइंड सिलेबस है। सिलेबस के एक टॉपिक के एक पेज के नोट्स, उससे ज्यादा नहीं। मेरे शायद जीएस 3 के नोट्स वर इन 80 पेजेस, पूरा जीएस 3। सिमिलरली फॉर जीएस 1 एंड जीएस 2 के नोट्स शायद 100 पेजेस में थे। तो उससे द रेट ऑफ द रिविजन इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ टाइम्स वी कैन डू रिविजन immensely increases if we follow the strategy of one topic one page note. We can also follow the same strategy in sociology for some topics but not for all topics. किसी किसी टॉपिक को थोड़ा ज्यादा डिटेल नोट्स पर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। और इन विच रीडिंग, या डेफिनेटली नॉट इन द फर्स्ट रीडिंग, इन सेकंड थर्ड रीडिंग जब भी ज्यादा आपको लगे कि यू आर रेडी फॉर मेकिंग नोट्स, उसमें बनाते। देन अगेन शिव, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, डू यू यूज पैराग्राफ्स लाइक डीयू स्टूडेंट्स और जीएस पॉइंट्स लाइक वाइस फॉर्मेट फॉर राइटिंग मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स? अच्छा, पहली बात तो ये डीयू स्टूडेंट्स में जरूरी नहीं है पैराग्राफ यूज करें। हम भी अपने आंसर्स में कई बार यूज करते हैं पॉइंट्स को, बिकॉज पॉइंट्स आंसर को बेटर बनाते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन मैं इसका आंसर करूंगा क्योंकि ये मैंने खुद से सोचा था इस अटेम्प्ट में, एंड व्हेन आई वाज डूइंग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस विद माय फ्रेंड, तो मैं कि एक्चुअली मैं क्या करूं तो मेक थिंग्स मोर इंटरेस्टिंग एंड नॉट बोरिंग फॉर द एग्जामिनर, आई यूज द मिक्स अप्रोच, कि एग्जामिनर को ये ना लगे कि ये हर बार बंदा पॉइंट में लिख देता है, और एग्जामिनर को ये भी ना लगे कि ये हर बार पैराग्राफ में लिख देता है। क्योंकि सर ने ही शायद पिछले साल टॉपर्स की कॉपी डाली थी, उसमें हर तरह के टॉपर थे। पैराग्राफ में लिख के भी लोग सोशियोलॉजी में 200 280 290 मार्क्स लाए हैं, पॉइंट्स में लिख के भी लोग 280 290 मार्क्स आए हैं। मैंने इस बार दोनों को कंबाइन किया था। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल गो इन पॉइंट फॉर्मेट, कुछ क्वेश्चन विल डेफिनेटली गो इन पैराग्राफ फॉर्मेट, ताकि एग्जामिनर को भी बोर ना हो जाए, उसको भी अलग अलग चीजें देखने को लगे। एंड व्हिच क्वेश्चन वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जिसका एक एग्जांपल वही वाला क्वेश्चन था, स्टेटस कास्ट वाला। अनदर क्वेश्चन वाज देयर, आई थिंक इफ आई हैव दैट क्वेश्चन टुडे विद मी, आई थिंक इट वाज अ क्वेश्चन, या दिस वाज अ क्वेश्चन लाइक व्हाट, लाइक अगर मैं पैराग्राफ वाले क्वेश्चन का एग्जांपल दूं तो लाइक वो पेट्रियार्की वाला क्वेश्चन कैन ऑलवेज बी रिटन इन पॉइंट्स, क्योंकि वो उसी तरीके से ज्यादा परफेक्ट लिखा। देयर वाज अ क्वेश्चन, व्हाट आर द बेसिक एंड इनरिड्यूसिबल फंक्शंस ऑफ फैमिली एज प्रपोज्ड बाय टैलकट पार्सन्स। अनदर, ये शायद मधु आपके क्वेश्चन को भी थोड़ा सा हैंडल करेगा कि किस तरीके से आंसर राइटिंग होनी चाहिए इस तरीके से। तो ये आपको पता ही है कि दो ही चीजें बोली हैं टैलकट पार्सन्स ने फैमिली के बारे में। अब दो ही चीजों को पॉइंट में लिखोगे, अच्छा थोड़ी लगेगा कि पॉइंट 1 और 2 हो गया बस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको आप पैराग्राफ में लिख सकते हो। वो दो चीजें मैं भूल गया, मैंने पढ़ी नहीं है सोशियोलॉजी मार्च के बाद से, नहीं मार्च मैं के इसके बाद ऊपर थोड़ा बता देता हूँ। जी जी जी। कि जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन था कि टैलकट पार्सन्स एक थिंकर है हमारे सिलेबस में। टैलकट पार्सन्स ने ये बोला है कि फैमिली नाम का जो संस्थान होता है समाज के अंदर, मॉडर्न समाज में खासकर, चाहे कुछ हो जाए, दो प्रकार के फंक्शन हैं जो फैमिली के अलावा और कोई नहीं कर पाएगा। वो फंक्शंस को इरिड्यूसिबल फंक्शन कहा जाता है, यानी कि फैमिली के अलावा और कोई नहीं कर पाएगा, और ये मिनिमम फंक्शन है जो फैमिली ही कर सकती है। वो कौन से फंक्शन है जो सिर्फ फैमिली कर सकती है, कोई और इंस्टीट्यूशन यानी स्टेट, मीडिया, रिलीजन नहीं कर पाएगा। और टैलकट पार्सन ने बोला था दो ही ऐसी चीजें जो सिर्फ फैमिली कर सकती है मॉडर्न समाज में। सबसे पहली चीज जो उन्होंने बोली थी, सोशलाइजेशन ऑफ यंग, छोटे बच्चों का नामकरण करना, उनको
सिखाना, नो बेटा ये यस ऐसे ऐसे, जो हल्की हल्की बातें, इसकी कोचिंग नहीं होती है, आपको मालूम है, इन चीजों की कोचिंग नहीं होती। ये तो मम्मी पापा ही कोच होते हैं वो छोटे बच्चों के, है ना। और दूसरी चीज जो सिर्फ फैमिली कर सकती है और कोई नहीं कर पाएगा, वो होता है स्टेबलाइजेशन ऑफ एडल्ट पर्सनैलिटीज। अब ये क्या होता है? ये होता है कि जब सपोज करो मम्मी वर्किंग है या पापा वर्किंग है या दोनों वर्किंग है, लेट अस अज्यूम दोनों ही वर्किंग है। चलो अज्यूम करते हैं कि ट्रेडिशनल फैमिली में जैसे सिस्टम होता है, फादर ज्यादातर वर्किंग रोल प्ले करते हैं, मम्मी ज्यादातर होम मेकर होती हैं। पापा ऑफिस में थके हुए हैं, परेशान हैं, बॉस के साथ कुछ झगड़ा हुआ है, घर पे आए हैं। घर पे आकर मदर या बच्चे या मदर के पेरेंट्स फादर जो ऑफिस आए उनको शांत कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं उस एडल्ट पर्सनैलिटी को जो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड है वर्क प्लेस में। तो इसे बोलते हैं वार्म बाथ, पार्सन्स की लैंग्वेज में। इट इज लाइक अ वार्म बाथ, कि एक आदमी बाहर से थका हुआ, थोड़ा सा पेट्रियार्कल भी साउंड कर सकता है आपको, ठीक है, कि आदमी कोई थका हुआ आया है, अब वो चाहता है थोड़ा सूदिंग एक्सपीरियंस हो, तो घर में वाइफ है, पेरेंट्स हैं, इन लॉज और बच्चे हैं जो उसको स्टेबलाइज करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे। तो ये दोनों फंक्शन फैमिली के अलावा और कोई नहीं कर सकता। अब इस क्वेश्चन में शगुन बोल रहे हैं पॉइंट फॉर्मेट एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि दो ही तो पॉइंट है, राइट। इसलिए आप पैराग्राफ अगर करके लिखोगे तो Better. अच्छा एक्सप्लेनेशन होएगा, और एग्जाम्पल दोगे तो और कंप्लीट भी हो जाएगा। ऑल्सो इन दोनों चीजों को आपको एक्सप्लेन भी करना है। इट्स नॉट जस्ट राइटिंग दीज 2 पॉइंट्स, यू हैव टू एक्सप्लेन दीज पॉइंट। तो दो अलग अलग पैराग्राफ, एक पैराग्राफ इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए, एक पैराग्राफ इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए। तो मिक्स ऑफ पॉइंट एंड वो अप्रोच मैंने इस बार कोशिश करी थी। मधु ऑल्सो सेड कि आफ्टर प्रीलिम्स कैन आई हैव डिस्कशन विद निशात सर टू चार्ट आउट माई स्ट्रेटेजी। ये काफी सही बात है, और जी निशात सर बहुत अवेलेबल रहते हैं। And even before this session, he was talking to students. So I think sir इसके लिए तो available रहेंगे बिल्कुल। डेफिनेटली। And let's have last question for the day. पूजा का question है, how to write GS questions sociologically for paper 2. Specifically उन्होंने पूछा है, and this is also very interesting thing because this was the point of discussion before this session also when sir was there with other selected candidates and students. कि इस बार जो पेपर 2 है ना, उसमें बहुत इट वाज बेसिकली वेरी मच इनटू पार्ट सी ऑफ पेपर 2। तो हमारे जो सिलेबस का, सोशियोलॉजी के सिलेबस का जो पार्ट सी है, उसको मोस्ट डायनामिक पार्ट बोला जाता है। बिल्कुल। और वो पार्ट बहुत जीएसएस भी लगता है, और उसमें सोशियोलॉजी घुसाना काफी मुश्किल होता है। फिर इसमें द बेसिकली व्हाट आई डिड इज आई यूज द कीवर्ड अप्रोच to insert, to analyze, not to insert, insert is a very wrong word, to analyze the phenomena। जो भी क्वेश्चन में पूछा है, अगेन जो भी क्वेश्चन में पूछा है, based on the keywords that I have in my syllabus। जैसे अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है किसी भी चीज पे, तो आप इस तरीके से उसको एनालाइज कर सकते हो कि यार कोई अगर फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव उस चीज को कैसे देखेगा, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव उस चीज को कैसे देखेगा, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव उस चीज को कैसे देखेगा, स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव कैसे देखेगा, और या फिर इंडोलॉजिस्ट कैसे देखेंगे, इंडिया में वो क्या प्रॉब्लम होती है, यूथ में क्या होगा, इलीट्स कैसे देखेंगे, मासेस कैसे देखेंगे, क्या उससे सोशल मोबिलिटी आएगी, क्या उससे सोशल रिवॉल्यूशन आएगा, क्या उसका रिलीजन से कोई लिंकेज है। तो एक हमारे इतने सारे कीवर्ड हैं, एंड द ब्यूटी इज कि वो कीवर्ड सारे सिलेबस में मौजूद है। डेफिनेटली। सिलेबस को प्रिंट कराओ, उसको अपने टेबल के सामने चिपका लो, और हमेशा उसको पढ़ते रहो। आप ऐसे पढ़ोगे 100-200 कीवर्ड तो आपको उसी से याद हो जाएंगे, और उन कीवर्ड्स के बेसिस पे, उनकी आइडियाज के बेसिस पे। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आ जाता है, आपको नहीं समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनना चाहिए, बिकॉज इट इज ऑल फ्रॉम द पार्ट सी, अ वेरी डायनामिक क्वेश्चन। उसी पे जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के साथ अगर आप लोगों को, जैसे एनईपी 2020 पे क्वेश्चन आ गया, 2 बार आ चुका है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। एनईपी 2020 पार्ट सी में एजुकेशन करके एक टॉपिक आता है, उससे कई बार 2 बार एनईपी 2020 पे क्वेश्चन आ गया। बिल्कुल। ठीक है, अब एनईपी 2020 को एनालाइज करना है, सोशियोलॉजिकली एनालाइज करना है।
एनईपी 2020 का जीएस पेपर 2 में हम बहुत शानदार आंसर लिख के आएंगे सब। सोशियोलॉजी में क्या करें, ठीक है। एनईपी 2020 क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो वोकेशनल एजुकेशन की बात कर रहा है। अब वोकेशनल एजुकेशन से क्या होगा, द इनइक्वेलिटी इन सोसाइटी विल डिक्रीज बिकॉज ऑफ बेटर जॉब्स टू ऑल स्ट्रेटास ऑफ सोसाइटी, ठीक है। सेकेंडली एनईपी 2020 से क्या होगा, वो बोल रहा है कि रूरल एजुकेशन, मतलब रूरल एरिया में जो स्कूल्स होते हैं उनको क्लब किया जाए अर्बन स्कूल्स के साथ, ताकि वो अपने स्पेशलिटीज को शेयर कर पाए। तो ये हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं कि रूरल एरिया में एजुकेशन का लैक होता है। दिस इज बेसिकली आइडिया गिवन बाय मल्टीपल थिंकर्स, ठीक है। तो रूरल एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, रूरल अर्बन गैप कम होगा। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट जेंडर बेस्ड एजुकेशन, फेमिनिस्ट आइडिया आ गया। इट जेंडर बेस्ड एजुकेशन बेटर होगी। ऑल्सो इस आइडिया को अगर हमें थोड़ा एक्सटेंड करना हो वोकेशनल एजुकेशन वाले आइडिया को, कि वोकेशनल एजुकेशन जॉब सबको मिलेंगी, तो कास्ट और जॉब के बीच का लिंक चला जाएगा। सही बात है। ठीक है, तो ये कास्ट एक यहाँ पे आ गया कीवर्ड, कास्ट हो गया, फीमेल हो गया, रूरल अर्बन गैप हो गया। फिर ये फंक्शनल लिटरेसी इंक्रीज करने की बात कर रहा है। तो एक और ये बात कर रहा है कि अफोर्डेबल एजुकेशन बनानी है। तो अगर अफोर्डेबल एजुकेशन हम कर देंगे तो इलीट और मासिस के बीच का गैप कम हो गया, वहां मार्क्सिस्ट एनालिसिस हो गया इसी आइडिया का। तो इसी तरीके से एनईपी 2020 को आप डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट कीवर्ड्स के हिसाब से अगर हम चलें और सोचें, तो हम इस तरीके के डायनामिक क्वेश्चंस को भी हैंडल कर सकते हैं। बट एनईपी के बेसिक फीचर पहले जरूर लिखना। हाँ, बेसिक फीचर जरूर लिखना पहले। यस यस, बेसिक फीचर्स लिखने के बाद वही, क्योंकि मैंने तो बस बोल दिया एनईपी 2020, ये पूरा क्वेश्चन होगा, सिर्फ एनईपी 2020 नहीं होता, देयर विल बी अ होल क्वेश्चन। बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन हमें अपने आंसर को नेविगेट और डिजाइन करना पड़ेगा। So thank you note to you, sir. Please convey message to Nishant sir. He's a very kind and positive guy. Always feel good to see. And yes, Nishant sir is a very positive guy. And sir, you cleared 3-4 times pre consequently. What is the strategy you followed each time? I think pre के बारे में we will have a session another day. How to deal with pre. And उसमें हम pre के बारे में ज्यादा ध्यान करेंगे। Just in short, अगर मैं आपको बोलना चाहूँ, static के मास्टर बन जाओ, pre क्लियर हो जाएगा। करंट का कोई अंत नहीं होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है इसने। और ये अभी क्या है कि जब से हम टॉपर सेशन कर रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, सब ने ये चीज बोली, पता है, एवरीवन इज सेइंग फोकस ऑन स्टैटिक। अभी ऐश्वर्या के साथ हुआ था, उसने बोला 90% स्टैटिक है बिल्कुल। प्री में, 10% करंट है। मेंस में GS2 और 3 में रोल है करंट का, लेकिन प्री जो पहला स्टेज है पहले, वो तो हमें क्लियर करना है, राइट। पीपल आर स्टक इन the loop of current affair. Every month they are reading a new magazine, feeling FOMO or relative deprivation, and that cycle is not going to end anytime soon. आप बट स्टैटिक को अगर होल्ड बना लोगे ना अपनी, कोई आपको रोक नहीं सकता प्री क्लियर करने से, प्रोवाइडेड PYQ आपने देखे हो। तो प्लीज डोंट वरी अबाउट करंट अफेयर, स्टैटिक पे आप ध्यान दो, जैसा शगुन भी कह रहे हैं। सो गाइज, Nishant sir, you also please share some light on GS questions to answer sociologically। इसी मैं तो यही बोलूंगा, शगुन ने जो कहा है सेम चीज। अगर क्वेश्चन NEP का है 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और ये लिखा है, लेट अस अज्यूम कि क्वेश्चन है 2022 में ही या 23 में क्वेश्चन आया था, 2023 में आया था क्वेश्चन एक, डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ NEP 2020। अब देखो कुछ नहीं लिखा है उसने, ये नहीं लिखा सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ NEP, उसने ये डाल दिया सोशियोलॉजी के पेपर में कि डिस्क्राइब सेलिएंट फीचर्स। ठीक है, टेक्निकली ये क्वेश्चन तो GS का होना चाहिए, सेलिएंट फीचर्स ऑफ NEP 2020। कोई बच्चा जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, अगर आप उसको ये क्वेश्चन दोगे, वो पूरा GS ही लिखेगा, क्योंकि डिमांड भी वही है, सेलिएंट फीचर्स जो होंगे शायद 6-7, ओके, या मोर देन दैट। GS के बच्चे को भी दोगे वो भी ये लिखेगा, पॉल साइंस के बच्चों को दोगे वो भी वही लिखेगा, हमको दिया जाएगा तो हम भी वही लिखेंगे। ठीक है, लेकिन एक डिफरेंस क्या आ जाएगा, सेलिएंट फीचर जब हम लिखेंगे पहले, सबसे पहले 6-7, वो पॉइंट्स आपके GS वाले पहले रहने चाहिए। ओके, आप उसको स्किप नहीं कर सकते, वो डिमांड का पार्ट है। तो अगर एक फीचर है NEP का, सपोज कर लो फीचर है कि
जो आपका लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट करना है एजुकेशन में। क्या अभी तक ना इंग्लिश डोमिनेशन बहुत ज्यादा है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट करना है, यानी वर्नैकुलराइजेशन ऑफ लैंग्वेजेस। इससे क्या होएगा, इंग्लिश लोगों को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगी, या लैंग्वेज कभी बाधा नहीं बनेगा, लैंग्वेज सिर्फ एक जरिया ही रहेगा, एंड नहीं रहेगा। अब ये अगर आपने पॉइंट लिख दिया, ये सेलिएंट फीचर है। अब सोशियोलॉजिकल एनालिसिस पता है क्या है, कि जो लिंग्विस्टिक डिवाइड है या लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी है, वो क्लोज होने लग जाएगी। और इसको और सोशियोलॉजिकल टच दे रहे हैं तो आप यहां पे एक थिंकर है बेसिल बर्नस्टाइन, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है लिंग्विस्टिक कैपिटल। बोर्डियो के स्टूडेंट रहेंगे, बोर्डियो ने कुछ फॉर्म्स ऑफ कैपिटल दिया था, इन्होंने लिंग्विस्टिक कैपिटल ऐड कर दिया कि जो लोग इंग्लिश में अच्छे होते हैं, टीचर अक्सर उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं क्लास में, और जो लोग इंग्लिश में अच्छे नहीं होते, थोड़ा लड़खड़ा के बोल रहे होते हैं, टीचर को लगता है इसका कुछ नहीं होगा, और अक्सर टीचर उन स्टूडेंट्स को ज्यादा नंबर दे रहे होते हैं और इनको कम दे रहे होते हैं। तो लैंग्वेज कभी अभी सो कॉल्ड मेरिट में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो गैप ना रहे उसके लिए तो क्या है कि पहले ठहराव रखना पड़ेगा कि आप सिर्फ फीचर सोचो प्योर जीएस, उसके बाद सोचो एनालिसिस, तब आपका आंसर सोशियोलॉजिकल बन जाएगा। ओके, सो शगुन, अब जो एक लास्ट चीज मैं बोलूंगा उसके बाद कंक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट मंथ प्रीलिम्स है, ठीक है, एंड आई होप आप दोबारा नहीं दे रहे हो। इस बार तो नहीं दे रहा, इस बार नहीं दे रहे हो, ओके ठीक है। सो क्योंकि पूछना पड़ता है ना, यू नेवर नो कि क्या मन है, कभी किसी का मन आईपीएस का भी होता है। ओके, कुछ लोग क्या कहते हैं, आईआरएस होने के बाद भी दोबारा अपेयर करते हैं। सो प्रीलिम्स में अगर कोई एक चीज तुम जरूर शेयर करना चाहो बच्चों के साथ, एक महीने के पीरियड में जो प्रॉब्लम ज्यादातर आती है, वो चीज क्या रहेगी, और किस चीज को अगर वो इग्नोर भी कर दें तो चलेगा? तो गुड क्वेश्चन सर, आपने जो पूछा, मैं यही मतलब एडवाइस करूंगा कि प्रीलिम्स में ना, आफ्टर मतलब माय एक्सपीरियंस इन प्री एंड पीपल हु क्लियर प्री मल्टीपल टाइम्स, मेरे को नहीं लगता कि 15-20 क्वेश्चन से ज्यादा का आंसर किसी को भी आता है। वी वी ड्राइव द आंसर, we somehow arrive at the answer. And how we arrive at the answer, we arrive at the answer जब हम पेपर में बैठे होते हैं, by एनालाइजिंग जितना भी हमने पढ़ा है। हमने न्यूज़पेपर में कुछ छोटी चीज पढ़ी होगी, हमने करंट अफेयर मैगजीन में पढ़ी होगी, हमने स्टैटिक में पढ़ी होगी, और हमने वो चीजें अप्लाई करके, यार स्टेटमेंट 1 तो गलत है, ठीक है, स्टेटमेंट 2 में भी गलत है, स्टेटमेंट 3 सही है, मैं 3 ओनली पे टिक कर देता हूँ। सो वी एक्चुअली अराइव एट द आंसर। एंड हाउ वी कैन अराइव एट द आंसर, वी कैन अराइव एट द आंसर ओनली एंड ओनली जब हमारा दिमाग खुद का शांत है, ठीक है। अदरवाइज हमने कितना भी पढ़ा हो, हम कभी उस आंसर तक पहुंच नहीं पाएंगे। और मतलब जिसके प्री में सबसे ज्यादा नंबर भी आते होंगे ना, उसको भी 20-25 से ज्यादा आंसर नहीं आते हैं। वो विथ टाइम पीपल हु क्लियर प्री अगेन एंड अगेन बिकम एन एक्सपर्ट इन अराइविंग एट आंसर्स। उनको आंसर्स आते कभी नहीं है। और अराइव आंसर करने के लिए अपने दिमाग को शांत रखें। उसके लिए सब अलग अलग चीजें, कोई मेडिटेशन का सहारा ले सकता है, कोई म्यूजिक का सहारा ले सकता है। थोड़ा सा कोशिश करें कि जो आपका टाइम टेबल है इज अलाइंड विद द एक्चुअल टाइम टेबल ऑफ यूपीएससी, कि दिन के 9:30 से 11:30 के बीच आप सबसे एक्टिव हैं, और सी सेट के टाइम आपको नींद नहीं आ रही है, ठीक है। अपने दिनचर्या को सही करिए, मेडिटेशन का ध्यान, बॉडी का ध्यान रखिए, अपनी माइंड का ध्यान रखिए इन दिस 1 मंथ। कोई नया सोर्स मत उठाना। आजकल टेलीग्राम पे खासकर इतने नए सोर्सेज हैं, इतने नए सोर्सेज हैं, कोई नया सोर्स मत उठाओ। अपने सोर्स को बार 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 रिवाइज करते रहो, स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग रखो, करंट करते रहो, बट करंट के पीछे भागना नहीं। एंड वन थिंग विच एक्चुअली यू कैन इग्नोर, जो ये सर ने बोला था, तो आई थिंक उसमें थोड़ा सा मेरे को लगता है कि द हिस्ट्री विच इज इन प्रीलिम्स इज बिकमिंग ट्रिकरी एंड ट्रिकरेंट बाय, मतलब बाय डे, और हर बार ना एक नया रिसोर्स आ जाता है हिस्ट्री का, ठीक है।
1-2 साल पहले थे जब क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे थे तो लोगों ने बोला कि इस बार क्वेश्चन अलभसम से आए हैं। अलभसम की फिर वो आने लगी, जिस्ट आने लगा, फिर अगले साल क्वेश्चन पूनम दलाल दहिया से आ गए, फिर जब उसका जिस्ट आने लगा अगले साल क्वेश्चन सतीश बंदोपाध्याय से आ गए। ठीक है, इससे क्वेश्चन करंट से मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन कम होते जा रहे हैं। तो हिस्ट्री के लिए मैं लोगों को ये बोलूंगा कि हर साल जिस तरीके से सोर्सेज चेंज हो रहे हैं, न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, तमिलनाडु बुक, ये वो, आपका जो एक सोर्स है हिस्ट्री का, उसी को बार बार पढ़ते रहो, उसी पे एक्सपर्ट बनते रहो। उस सोर्स से कोई क्वेश्चन आए तो सोल्व कर देना, वरना हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 7-8 तो ऐसे होंगे कि उनकी हवा भी नहीं लगेगी। ठीक है, 5-6 आप सही कर दोगे, 2-3 का आप आंसर अराइव कर जाओगे। तो क्योंकि हिस्ट्री टफ होती जा रही है तो फोकस मोर ऑन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, दीज 3 थिंग्स कंबाइन करके मेरे ख्याल से 50 क्वेश्चन बनते हैं तीनों के। उनमें से आप सही में, अगर आपने स्टैटिक सही से करा हुआ है तो उसमें से आप 40-45 क्वेश्चन सही कर सकते हो, डेफिनेटली। and you will get 90+ score only by focusing on these 3. Then current, history, environment, science and tech, this can always give you those 10-15 questions. तो हो गए आपके 60 क्वेश्चन से और हो जाएगा आपका प्री के लिए। वेरी नाइस। शगुन, तुमने एक लाइन बोली है, इसको शायद मैं बहुत सालों तक यूज करूंगा कि यू अराइव एट द आंसर बिल्कुल से, प्रीलिम्स में, बट मेंस में ऐसा नहीं होता, यू नो द आंसर। you know the answer. ये इसलिए बोला गया है क्योंकि प्रीलिम्स में आपको एलिमिनेट करना पड़ता है, समझ और सूझ भी लगानी पड़ती है, लॉजिक लगाना पड़ता है, इसलिए अराइविंग, और वो अराइविंग की प्रैक्टिस आई गेस पीवाईक्यू से ही करती PYQ and test series. टेस्ट सीरीज। ओके, ठीक है शगुन, सो वी कंक्लूड द सेशन हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम आउट एंड आई जस्ट विश यू ऑल द सक्सेस इन लाइफ। Thank you so much. आप sir. जिस भी फील्ड में जाओ अच्छे फोड़ू बनो, Thank you. चाहे आईपीएस रहो, आईएएस बनो बाद में, जहाँ पे भी अच्छा कर, जहाँ पे भी रहोगे आई एम श्योर आप एक्सेल ही करोगे। Thank you so much. sir. एंड गाइस, आपको जो भी सपोर्ट चाहिए होगा, जैसे भी शगुन से भी अगर आपको कुछ पूछना होगा, शगुन विल यू बी क्रिएटिंग एनी टेलीग्राम चैनल? Sir, I have created one. ओके, one Telegram channel. I will let you know about that, sir. डेफिनेटली। और वहाँ पे भी once the marksheet कम, जो शायद मंडे तक Yes. बाहर हो जाएगी, यस, उसके बेस पे I will post my analysis के what worked out in pre, what worked out Sure. on mains. एंड यू कैन शेयर योर चैनल आईडी आल्सो विद अस एज वेल, Yes, हम sure. स्टूडेंट को शेयर कर देंगे। बिल्कुल। ओके, ओके गाइस, थैंक यू सो मच, वी आर रैपिंग अप द सेशन नाउ, थैंक यू Thank फॉर you.